Very good morning to all of you. Today we are going to start a very new chapter. The name of the chapter is Theory Base of Accounting. Theory means what is the basis, like we are doing a particular subject. This accounting is the process which we are studying in accounts. जो हमारा subject है accountancy में हम जो process करते हैं, that is accounting. Now when we do this process, do we follow some rules? Do we follow some principles? Do we follow some guidelines while doing this process? Like whatever you do, for example, you are doing some chemical reaction experiment in the chemistry lab. Then will you be keeping something in your mind which is being taught to you? Chemistry का कोई experiment करने से पहले कुछ पढ़ाई तो की होगी आपने. So while studying that subject, you may have studied about some chemical properties of some elements कि अगर इसको mix करेंगे तो ये हो जाएगा. So something or the other as a principle or basic guidelines, first you study and then you apply somewhere. Similar thing is going to happen here when you are going to do this process accounting. Accounting अभी start भी नहीं करे हमने. To do this process, we have to study about some theory. We have to study about some basic guidelines or basic principles. Basic guidelines और principles जिसको हम कहते हैं. ठीक है जी, जैसे हम साइंस में पढ़ रहे हैं तो हमने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन बाय न्यूटन और ग्रेविटी के लॉज पढ़े, उसके बेसिस पे आगे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. Similar thing is going to be here, but here the principles and guidelines, they are not rigid just like that of science. ठीक है, साइंस के जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, वो एक बार बन गया, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, in India, in US, in any other part of the world, whenever you go, the same rule will be applicable, no matter what. Whereas accounting principles, they are flexible in nature, they can be changed according to the latest. अगर कोई रिसर्च करते हैं, कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस लाती है गवर्नमेंट. हमारी इंडिया में हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है which issues these guidelines? It is ICAI. Any one of you know the full form of this ICAI? Anji. Yes, no one बेटे. अच्छा, ये पता है आपको CA क्या होता है? All of you know what is the meaning? Who is a CA? Okay, Nandika wants to answer. Yes, Nandika बेटे, you can answer. Ma'am, Institute of Chartered Accountants. Yeah, this is the correct. इसकी full form है. It is Institute of Chartered Accountants of India. So this is the authority which is governing the accounting process, the principles, the guidelines, what rules and regulations will be followed in India. It is being governed by this institution. ठीक है जी, इन्होंने अपने कुछ standards, कुछ guidelines दिए हैं. They are called as accounting standards. AS हम उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? AS. AS means accounting standards. ठीक है, the guidelines which are being issued by ICAI, it is called as accounting standards. Whereas which principles we are talking about? See, in India जो हमने rules follow करनी है, जो guidelines हमने follow करनी है, वो तो ICAI ने दे दी. But ICAI ने भी जो guidelines दी, they are derived from some other theory. They are being derived from the theory which is being followed throughout the world. So throughout the world, whosoever is doing this accounting process across the globe, कहीं भी, so every accountant is following some basic guidelines or principles. These principles or guidelines are called as GAAP. इसकी full form होती है Generally Accepted Accounting Principles. Please ये लिख लीजिए. आपको मैं थोड़ा इसका मीनिंग बता रही हूँ, just for your general knowledge. इसके as such कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते. आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि you are doing accounting, from where it is getting its right. So this is generally means everyone in general has followed. Generally accepted, ACCEPTED, accepted
accounting principles, generally accepted accounting principles which are being followed throughout the world. On the basis of these generally accepted accounting principles, the whole theory which is being given by ICAI, the accounting standards, they are being based on these gap. ठीक है जी, डन है. Now please write it down एक लाइन में. What do you mean by principles होते क्या है, guidelines होती क्या है? तो हमारे पास एक definition है. Please write it down. I am reading from the book. Principles of accounting. You want to write? You can write. It is there in the book also. Principles of accounting are general law or rule. Principles of accounting are general law or rule adopted or proposed as a guide to action. कॉमा डाल के लिखिए. A settled ground or basis of conduct or practice. This is given by American. ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये किसने दी है? This is given by American Institute of, जैसे हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो जो अमेरिका की है, इट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है जी. So because you know in India we are following, most of the time we are following the theory and the concepts given by the other countries, like this basic gap, its formation and its roots, they are being proposed by American Institute of Certified Public Accounting. Similarly in various countries they may have developed their own. जैसे इंडिया में हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए. Who has made? हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दे हैव मेड. ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे. हम यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका जो टच है वो ले लेंगे. आपको गैप क्लियर हो गया है, आपको आईसीएआई के बारे में पता चल गया. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडीिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन आपको मैंने अभी बताई, थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ लेते हैं. कहते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या है? व्हाट आर प्रिंसिपल्स? Principles of accounting are, आप लिख चुके हो, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. General law. This is general law. General means it is not your personal, my personal. It is generally applicable to all. Or rule adopted and proposed. ये कैसा rule है? जो propose किया गया and then adopt किया गया. लोगों ने इसको accept किया. लोगों ने means accountants across the globe. They have accepted it. Then they became principle. ऐसे नहीं कि overnight किसी ने बोला ये principle आज से apply होगा. No. This is being developed by repeated practice and then it is accepted by all accountants. As a guide to action, very important word, as a guide to action means you are an accountant, you don't know what to do. So I will give you some principles. So I will say you कि when you will become accountant, follow these principles. So these are your guide to action. जैसे आपको मैंने बोला बेटे अकाउंट्स बनाने, आप बोलोगे मैम on what basis? Calendar year or the financial year? What basis? So I will tell you these are the principles. Go and check. तो principles में ये बताया जाएगा आपको कि which year you are supposed to follow, which amount you are supposed to take, cost price लेना है कि market price लेना है, calendar year लेना है कि. So all these like assumptions which you are supposed to take while doing accounting, they are principles. हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेटे दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं कन्वेंशंस. आई रिपीट, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. पेपर में इसके साथ रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते. मैक्स टू मैक्स आपको 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, दैट्स ऑल.
ठीक है, till now what we are studying, this is just for your information. Okay, so concept और convention क्या होता है? Concept means when we are giving you some concept or as an assumption we are telling you that this is, you are supposed to keep it in your mind while doing the accounting. This is called as concept. What is convention? Convention is the technique you are supposed to follow while doing accounting. जैसे प्रोसेस कौन सी फॉलो करनी है, मेथड कौन सा फॉलो करना है, स्टेप कौन से फॉलो करने, तो जब आपको उसकी एक्चुअल वर्क प्रोसीजर बताते हैं वो कन्वेंशंस होते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली होते दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब होते तो प्रिंसिपल्स ही है, होते गाइडलाइंस ही है, बस कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया जाता है कि ये आपने ये चीजें दिमाग में रख के करना है और यहाँ आपको बताया जाता है ये स्टेप्स आपने उठाने. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में आपको मैंने एग्जांपल दे दी कि आपको ये बताया गया कि कीप इट इन योर माइंड दैट यू आर सपोज टू राइट ऑल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. इवन अ ट्रांजैक्शन, आपने फॉर एग्जांपल आपने एक मंथ जॉब कर ली, आपको सैलरी नहीं मिली, बट यू विल राइट कि मेरी इनकम होगी 1 मंथ की, भले आपको सैलरी नहीं मिली, यू विल गेट इट लेटर. ठीक है, यू हैव गिवन योर सर्विसेज, इट मींस यू हैव अर्नड दैट इनकम. You have not received cash, but you have earned that income. This is something which you are supposed to keep in mind while making the books of accounts. This is a concept. Convention की example है, for example, there are different methods to be followed. In accounting, there are different methods. So which method you are supposed to follow? If you are following one method, you are supposed to continue with the same method. So these are various practices. It is called as conventions. समझ आया कुछ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इतना ही याद रख लो कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. दीज आर जनरल गाइडलाइंस व्हिच गाइड यू हाउ टू डू द अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, इसका ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग फ्रॉम द बुक सो दैट यू विल बी हैविंग बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेम. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, at the end of the lecture or tomorrow in the beginning of the lecture, just give it a reading and then ask me if you have any doubt. Okay, so now ये जो principles हमारे होते हैं इनके क्या features हैं? What are the features of principles? Features तो पता है ना, आप उसमें business studies में भी पढ़ते हो. What are the features of sole proprietor और partnership जो आप कर रहे हो? तो what are the features of these principles? Features means ये principles हैं क्या और कैसे बने. तो these principles which we are studying, are these principles natural or man-made? These man-made. Yes, these principles are number 1. These are man-made principles. या फिर मैं लिख देती हूँ man-made guidelines. तो ये किसी ना किसी इंसान ने ही आफ्टर डूइंग द रिसर्च, so these principles are being formulated. These are man-made principles. See, some students are joining right now. It's too late. A number of times I have told you to join well in time. चलिए, man-made guidelines are there. Number 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो principles होते हैं हमारे accounting principles, ये rigid होते हैं कि flexible होते हैं? Change हो सकते हैं? Flexible. Yes, these principles are flexible in nature. Why these principles are flexible? Because like मैंने आपको एग्जांपल अभी दी कि हमारे जो इंडियन ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो रिसर्च करेंगे, they will find some other better principle, they will find some other better guidelines. कोई और थ्योरी अच्छी लगेगी, they will introduce it. They will be like these principles will keep on changing and evolution. जैसे evolution होता है so it keeps on developing on the basis of the researches done from time to time. ठीक है, moreover these principles are not universally applicable. They can be changed according to the situation. They are not rigid as that of science. Okay, then these principles ये सिर्फ हमारे पर्सनल होते हैं कि जनरली सबके होते हैं? ये प्रिंसिपल्स हमारे सिर्फ इंडिया में ही हैं कि बाकी कंट्रीज में भी हैं? जनरली सारे सभी नहीं है. Very good. These are generally accepted. अभी बताया था ना, गैप होता है ये. Generally accepted principles. ठीक है. For example,
जैसे मैथ्स की एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज सेम इन इंडिया, इन कनाडा, इन अमेरिका, यूएस, यूके, एवरीवेयर इट इज सेम। लेकिन जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, 1 में क्या पढ़ाना है, क्लास 2 में क्या पढ़ाना है, 10th में क्या सिलेबस रखना है, 12th में क्या रखना है, that is different. It depends upon the country to country how they are like modifying their syllabus and curriculum and giving it to the children to study. But basically the basic roots of mathematics, it is generally accepted across the globe. ठीक है? So these principles are also generally accepted. Okay, have you ever thought ki why these principles are being made or why these principles have been like derived kyun kiya gaya है? What is the purpose? Any one of you? Yes, any one of you? No, okay, no problem. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. See, अगर हमारे जो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर हमारे जो अकाउंट्स हैं they will be based on some principles or guidelines, then definitely this is going to happen that all the companies across the nation they will be following the same guidelines. ऐसे ही होगा ना. अगर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दे दी, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी सेम गाइडलाइंस फॉलो करेंगी, सेम गाइडलाइंस फॉलो करेंगी, सेम कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहेगा और सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो. ये कॉन्सेप्ट होते हैं assumptions to be kept in mind, आप लिख सकते हो. and this is guidelines to action, the methodology to follow. तो सेम कॉन्सेप्ट उनके भी दिमाग में होगा. जैसे मेरी कंपनी टाटा है फॉर एग्जांपल, तो टाटा भी वही मेथड फॉलो कर रही होगी और उधर रिलायंस भी सेम मेथड फॉलो कर रही होगी, उधर मित्तल इंडस्ट्रीज भी सेम मेथड फॉलो कर रही होगी, इंडियन एयरलाइंस भी सेम मेथड. सो इन केस टू कंपनीज वांट टू कंपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एज एन इन्वेस्टर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन याद है ना आपको, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक बैंक है उसको 3-4 कंपनीज की अकाउंट्स देखते हैं. इफ ऑल द कंपनीज आर फॉलोइंग सेम गाइडलाइंस, इट विल बी बेटर फॉर यूजर्स टू research on the accounts, to see and check into the information of various companies accounts. So generally accepted guidelines में 2-3 चीजें हमारी आ जाती हैं. एक तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा सबका अकाउंट्स, यूनिफॉर्म मींस सेम मेथड दे विल बी फॉलोइंग. देन रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि जो मुझे पर्पस सर्व करना है. फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक कंपनी के अकाउंट्स को स्टडी करके देख लूंगी हाउ टू लाइक गेट द इंफॉर्मेशन एंड is it like a good option to invest or not, and then the same other company and the third one, fourth one. So similar way it will become relevant to me. Relevant means I will be able to take a decision. ये आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था qualities of good accounting information. Remember कि comparable हो सके, easy to understand हो सके, relevant हो सके, हमारा purpose serve कर सके, objectivity हो उसमें, इट मींस कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके, उसकी वेरीफाइबिलिटी हो, फॉल्स ना हो, उसके पीछे प्रूफ हो हमारे पास. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर द सेम. सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड इंप्लीमेंटेड, लाइक इट इज प्रपोज्ड टू बी फॉलोड. ठीक है जी. यहां तक जो हमने पढ़ा, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वर फॉर लाइक 1 mark. One question or 2 question can come in your exam in the form of MCQs. Now the concepts we are going to start. We have 3 fundamental concepts. Concepts or conventions होते कितने हैं? We have 3 fundamental concepts. Total 11 concepts हैं हमारे, और बाकी 8 जो है हमारे other concepts. ठीक है जी. तो 8 और 3 11 होंगे. And we have 3 conventions. 3 conventions are there. So all in all 14 points we are going to study in this topic now. How many? 14 points we are going to study. 3 fundamental principles, जैसे हम बोलते हैं कि बेसिक हमारा प्रिंसिपल क्या है. फॉर एग्जांपल हमारे बेसिक वैल्यूज क्या है बिजनेस की. तो कुछ भी पॉलिसी हो सकती है कंपनी की, जो भी उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स को बोला फॉलो करने के लिए. तो ICAI बोलता है कि 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं which will be common and be followed by everyone, and 8 other principles and 3 conventions which is being proposed and implemented here in the country.
So write it down, start writing. It is very important, very important, which we are going to start. First, fundamental concepts जो है आप heading लिख लीजिए. Fundamental concepts और assumptions कौन कौन से हैं हमारे? Number 1 is going. मिटा दें इसको. Number 1 is going concern concept. Going concern concept. Going concern. इसके नाम से ही पता चल रहा है. कंसर्न हम बेसिकली इंस्टीट्यूट को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं. Going means which keeps on going year after year after year. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, अभी याद रखना है व्हाट इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट है जो हमारी अजम्पशन है, जिसको हमने यहाँ पे रख के आगे अपने अकाउंट्स बनाने. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि जो आपकी कंसर्न है ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो गोइंग रहेगी. गोइंग मीन्स इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. प्लीज राइट इट डाउन. एक लाइन में लिख लीजिए, मैं इजी सी लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ. According to this concept, it is assumed that business will continue its operations. I repeat, according to this concept, it is assumed that business will continue its operations year after year for an indefinite period of time. Indefinite समझते हो ना? Indefinite means we don't know till when it is going to continue. Indefinite period of time. ठीक है जी. तो जब आप अकाउंट्स बनाने लगे, अब आप अकाउंटेंट हो, आपको अपने दिमाग में पहली चीज जो क्या रखनी है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. ये कहता है कि when you are starting preparing your books of accounts, you are supposed to keep it in mind that your business is going to continue. तो आपने ऐसा नहीं करना. फॉर एग्जांपल, आपने अभी एग्जांपल के लिए तुम्हें ये अंडरस्टूड ही है बेसिकली, हमें ये पता ही है हमें कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम इसी साल थोड़ी बंद कर देंगे. तो उसको चलते रहेगा. वो कब तक चलता रहेगा, वी नेवर नो. हाँ, हो सकता है हम मर भी जाए, हमारे बच्चे चलाएं, वो भी मर जाए, उसके बाद उनके बच्चे चलाएं, तो हमारा बिजनेस पता नहीं कब तक चलता रहे. ये भी हो सकता है कि 10-15 साल में कोई ऐसी सिचुएशन है हमें बंद करना पड़ जाए. बट कहते हैं ना, बी पॉजिटिव एवरी टाइम. सो वी विल होप फॉर द बेस्ट दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू. फॉर एग्जांपल, हमने 5 इयर्स का लोन लिया बैंक से किसी भी पर्पस के लिए, तो हमने ये साथ में अज्यूम किया ना कि 5 साल हमारा बिजनेस चलने वाला, तभी तो 5 साल में लोन वापस करेंगे. नहीं तो हम 1 ही साल का लोन लेते करंट ईयर का से. सिमिलरली, जैसे हमने मशीन खरीदी फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए, तो मशीन है उसकी लाइफ है 10 इयर्स. अब मैं ये भी एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ. 10 इयर्स एक मशीन की लाइफ है, और वो मशीन है 1 लाख रुपीस की. ठीक है. तो हम क्या करते हैं जनरली, अगर 1 लाख की मशीन है और 10 इयर्स उसकी लाइफ है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 10,000. इट मीन्स एवरी ईयर 10,000 रुपीज की मशीन जो है हमारी, वो डेप्रिशिएट हो जाती है. क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट. समझते हो ना? डेप्रिसिएशन समझाइए आपको. द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. तो 10,000 10 साल तक कम होता रहेगा, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10वें साल, द वैल्यू ऑफ माय मशीन विल बिकम 0. ठीक है. तो अगर मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है कि मैंने मशीन खरीदी और उसका खर्चा हुआ, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आई विल राइट ओनली 10,000 रुपीज एज एन एक्सपेंस. पूरा 1 लाख मेरा 1 साल का खर्चा तो नहीं है, ये मेरा 1 लाख तो 10 साल का खर्चा है. तो इस साल का खर्चा कितना है? ओनली 10,000 रुपीज. ठीक है जी. तो ऐसे मैं अकाउंट्स बनाती हूँ. बना तो लिया मैंने, बट इसमें मैंने देखो मेरे दिमाग में एक चीज रखी मैंने, दैट अगर मशीन 10 साल चलने वाली है,
तो बिजनेस भी तो 10 साल चल रहा है, ये भी तो मेरी assumption है ना साथ में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज वेल अंडरस्टूड। ये हमें पता तो पहले ही था, लेकिन ये अभी हमने किताबों में पढ़ लिया। प्लीज राइट इट्स एग्जाम्पल, यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल इफ वी परचेज्ड अ मशीनरी of rupees 1 lakh whose life is 10 years, so the estimated expense for 1 year will be 10,000 rupees as shown on the board. हाँ जी Jaskaran, you want to ask something? मैम जो हमने लिमिटेशंस पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में मैम, उसमें अनरियलिस्टिक इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन है, उसमें था ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैम, उसमें मतलब उसके रिलेटेड ये कैसे है? बेटे देखो अनरियलिस्टिक है ना, अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि 10 इयर्स तक मशीन चलेगी और 10 इयर्स तक बिजनेस भी चलेगा। हम इसी अजम्पशन के ऊपर अपने बुक्स बना रहे हैं, 10-10 हजार लिखते जा रहे हैं। हो सकता है एट द एंड ऑफ 4 इयर्स मेरा बिजनेस किसी भी रीजन से XYZ कोई भी रीजन लगा लो, मेरा बिजनेस बंद हो गया। इट मींस आई वाज डूइंग इट रॉन्ग फॉर द पास्ट 4 इयर्स। 4 साल मैंने गलत अकाउंट्स बनाए, इसका मतलब 4 साल तो मैं 10-10 हजार शो करती रही और 5वें साल मेरा बिजनेस ही बंद हो गया। तो इसका मतलब 5वें साल पूरी 50,000 की मशीन इकट्ठी चली गई। सो दिस इज हाउ वी कैन से इट इज अनरियलिस्टिक आल्सो। अकाउंटिंग में देखो ये assumption तो हम लेते हैं, बट लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल। हमारी लाइफ भी नहीं और बिजनेस की लाइफ भी नहीं, यू नेवर नो। आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने टोबैको का बिजनेस शुरू किया है, फैक्ट्री आपकी कुछ भी टोबैको प्रोडक्ट्स बनाते हो आप, और आपको नहीं पता, आप तो 10 साल के हिसाब से मशीनें ले आए। अब नेक्स्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इंडिया में जितनी भी टोबैको मेकिंग कंपनीज है वो टोटली बैन, टोटली इलीगल बिजनेस हो गया, तो यू हैव टू शट डाउन। बट यू हैव अज्यूम्ड मेरी मशीन तो भाई 10 साल चल रही, मैं 10 साल से पहले बिजनेस नहीं बंद करूंगा। तो वहां पे आपकी अजम्पशन और एक्चुअल अकाउंटिंग दोनों फॉल्स हो गए, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ अनरियलिस्टिक अजम्पशन वहां पे उन्होंने इसको, देखो हर चीज का लूप होल तो होता ही है, बट वी विल अज्यूम फॉर द बेस्ट। ICAI कहता है कि आप यही सोच के चलो कि आपका बिजनेस अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। इट इज डन दिस एग्जांपल, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज आल्सो, वैसे मैं बता देती हूं। कंसिस्टेंसी, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल? बेटे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट तो पता है ना क्या है, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा। Anyone of you can raise your hand and tell me what is the meaning of consistency? सिफत प्रीत, yes बेटे you can tell. मैम जो मतलब रेगुलरली चलता है। ओके, जैसे कोई भी प्लेयर है, हम बोलते हैं कि अब मुझे क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम पता नहीं है एक्चुअली, इस एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लो, कोई भी एक अच्छा प्लेयर है जो हमें पता है कि इन ऑल द मैचेस ही यूज्ड टू मेक रन। कोई ऐसा एक होता है कंसिस्टेंट प्लेयर जो हर मैच में चल ही जाता है, मतलब 50-60 स्कोर तो बना ही लेगा वो, 50-60 समटाइम्स 100। एक दूसरा प्लेयर है जो किसी मैच में तो 100+, किसी मैच में 2-3, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। कभी तो बहुत अच्छा चलता है, कभी बिल्कुल ही नहीं चलता, तो वो अनकंसिस्टेंट हम उसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट मींस who will continue performing in the same way as he was performing earlier, उसको हम कंसिस्टेंट प्लेयर कहते हैं। समझ गए कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग? अब अकाउंट्स में हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि एज एन अकाउंटेंट आपने जो मेथड एक बार फॉलो कर लिया, आपको कंसिस्टेंटली सेम मेथड रिपीटेडली यूज करना है। ये नहीं है कि पहले आप मेथड कोई और लगाओ, नेक्स्ट ईयर कोई और लगाओ, उससे नेक्स्ट ईयर कोई और लगाओ, तो अगले साल पिछले साल के साथ खुद ही कंपेयर नहीं कर पाओगे। एक साल, जैसे स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, एक साल स्कूल वाले आपको ABCD ग्रेड में रिजल्ट देते हैं, नेक्स्ट ईयर स्कूल वाले आपको परसेंटेज में रिजल्ट देते हैं, थर्ड ईयर वो आपको CGPA में रिजल्ट देते हैं, 5 CGPA 6 CGPA। तो स्कूल पीपल मतलब हम यही कहेंगे ये तो खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो ICAI हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल कहता है, प्लीज राइट इट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये मैं हर बार ही बोलती हूँ पहले, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट accounting methodology once followed, accounting methodology once followed
should be repeatedly followed year after year. Or in other words, दूसरी लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, और in other words, it should not be changed frequently. Frequently change नहीं करना है. जैसे मान लो 5-6 years हो गए आपने एक ही मेथड फॉलो किया, now you want to change the method, you can change, but frequently change नहीं करना. ठीक है? It should not be changed frequently. एग्जाम्पल लिखिए. अभी मैं डेप्रिसिएशन की एग्जांपल दोबारा ले रही हूँ. ये डेप्रिसिएशन यहाँ निकाल के बताई थी, इसी की सेम एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ना डेप्रिसिएशन के बेटे 2 मेथड्स होते हैं फॉलो करने के. फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, इसको WDVB कहते हैं. तो हमारे पास 2 मेथड्स आर देयर. एग्जांपल के लिए बता दिया. फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. So in case you are following any method, you are supposed to continue with the same. जो भी मेथड आप दोनों में से फॉलो करो, आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा ईयर आफ्टर ईयर, फॉर एट लीस्ट लाइक नॉट लेस देन 1 ईयर में आप उसको चेंज नहीं करोगे कि 6 महीने आपने एक मेथड फॉलो किया, अगले 6 महीने दूसरा मेथड फॉलो. तो इट इज नॉट एट ऑल अलाउड. डन है बेटे? थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज very important again, accrual concept. Third one is accrual concept. ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, सेम फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ. अब ये accrual concept क्या होता है? See, I think I have told you yesterday also the meaning of accrued income. You remember? I've told you accrued income क्या होती है. Any one of you can tell, जिसको याद है. मैम आपने गवर्नमेंट इनकम की वो एग्जांपल दी थी कि एक मंथ की जो इनकम है वो हमें 4 मंथ के बाद मिल रही है और वो एसेट ही होती है बाद में हमारी. ठीक है, वेरी गुड, आपको अच्छे से याद है. accrued का मतलब है ऐसी इनकम जो हमने कमा ली बट रिसीव नहीं करी. मैंने स्कूल में जॉब कर ली, 4 महीने गवर्नमेंट जॉब की एग्जांपल लग रही थी, 4 महीने हमने काम किया बट हमें पैसा नहीं मिला. अब फॉर एग्जांपल, अब मैं अकाउंट्स बना रही हूँ जनवरी से लेके मार्च तक. मार्च में मेरा ईयर क्लोज होता है ना, मार्च में मेरा ईयर क्लोज हो जाता है. तो मार्च का मंथ आ गया है और मुझे इन 3 महीनों में कोई भी सैलरी नहीं मिली है. मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिली है, बट आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड फॉर 3 मंथ्स. तो क्या मैं इसको सैलरी लिखूंगी? मान लो मेरी सैलरी है 50,000, तो डू आई राइट इट एज एन इनकम और नॉट?